Hi friends, after a long break, I, Shapan Chaudhary, your community influencer, back with my Kebilola community channel before you. ये था year end plus New Year Eve, so everyone was busy celebrating with their family and friends. इस मौका में मैं भी थोड़ा ब्रेक ले लिया. So नया साल में सबको बधाई हो, नया साल सबको मुबारक. Happy New Year to all my friends, colleagues and the community people as well. अभी नया साल 2026 कैसा जाएगा? It will definitely be full of challenges. लेकिन नया साल कैसा जाएगा, क्या करने पड़ेगा, वो समझने के पहले पिछला साल कैसे गया, स्पेशल इवेंट्स, अनाउंसमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेक होल्डर्स का प्रोग्राम क्या था, वो समझना बहुत जरूरी है. मैं उस बारे में एक कैलेंडर तैयार किया है जो अभी मैं आप लोग का सामने रखूंगा. देखिए, जिसका एनालिसिस करके ही आपको आगे का रास्ता समझना और निकालने पड़ेगा. सो लेट अस बिगिन विथ chronological events of 2025. Government of India, Ministry of Information and Broadcasting bearer Mr. Sanjeev Shankar, Joint Secretary, उन्होंने 17 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर पब्लिश किए थे. According to the circular, on and from 17 जनवरी 2025, LCO का PNT रजिस्ट्रेशन सिस्टम बंद किया गया and a new registration authority under MIB was introduced for registration renewal of LCOs to do business. करीब एक साल होने चला. As of now, पूरा देश में LCO रजिस्ट्रेशन अब तक हुआ है 24,224 only. Question is it the correct number of LCOs working in India? February 5th and 6th of 2025, 8th edition of Bengal Global Business Summit कलकत्ता में आयोजन किया गया था. बोला जाता है कि यहाँ पे 4.4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया था, जहाँ पे अबाउट 212 MOU साइन किया गया था बाय द डिफरेंट बिजनेस हाउसेस ऑन द एजेंडा टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. लेकिन बंगाल का करीब 10 लाख livelihood is dependent on cable industry, directly or indirectly. But it is unfortunate that this story is somehow either ignored or not taken into consideration till now. Kebilola has raised the issue by its appeal on the matter through Kebilola social platform on behalf of operators community of Bengal. An online video meet was organized by MIB, Ministry of Information and Broadcasting, under the title Holistic Review of Regulatory Framework of Broadcasting Sector. इस मीट में ऑल इंडिया से बहुत सारी LCOs ने भाग लिया था, जहां पे LCO ने अपना ऑपरेशनल डिफिकल्टीज, केबल टीवी में GST का कम करने का मांग एंड अनवायबल रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बिटवीन LCO एंड MSO को रखा दिया था. A protest program was held at JioStar office at Rene Tower on price increment matter, unregulated OTT platform and OTT platform का सरप्राइजिंगली लो प्राइस का लिए कंटेंट का कॉस्ट इतना केबल टीवी इंडस्ट्री में बढ़ गया था, उसका लिए केबल टीवी का बिजनेस लॉस हो रहा था, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस हो रहा था. OTT प्लेटफॉर्म में कंटेंट प्राइस कम होने का कारण और रेगुलर बेसिस केबल टीवी में प्राइस इंक्रीमेंट का कारण केबल टीवी में भारी बिजनेस लॉस हो रहा था और फर्दर होने का खतरा देखते हुए LCO ऑर्गेनाइजेशन ने जियो स्टार में भारी प्रदर्शन किया था. নমস্কার আমি এখন আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি. শুরু করার আগে এখানে আগত সমস্ত কেবল অপারেটরদের আমি কেবলওয়ালার তরফ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি.
নমস্কার জানাচ্ছি। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্পন্সর আছে, আমাদের অনারেবল স্পিকাররা থাকবে এবং যে সমস্ত গেস্ট আসবে তাদের সবাইকে অভিনন্দন দিয়ে আমি খুব তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠানটার মধ্যে চলে যাব। On 12 अप्रैल 2025 में केबीरोला कम्युनिटी प्लेटफॉर्म का तरफ से फ्यूचर अनफोल्ड लेकर के एक समिट 2025 का आयोजन किया गया था। मेजर एमएसओ, आईएसपी, इवन ऑपरेटर्स एसोसिएशन इस प्रोग्राम को एंडोर्स किया था, which was first time ever in West Bengal cable industry. The purpose of the event was to know and understand industry's current status and how it will move forward. All India MSO Consortium AIDCF ने EY, Ernst & Young, a UK-based audit and consulting firm को अपॉइंटमेंट किया था to find out the root cause of cable TV business loss. LCO रिन्यूअल पोर्टल में एक सर्वे फॉर्म अपलोड किया गया था for LCOs to input certain data ताकि एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाया जाए एंड वो रिपोर्ट रेगुलेटर अथॉरिटी के पास भेजा जाए टू प्रॉपरली एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ केबल टीवी इंडस्ट्री। एमएसओ कंसोर्टियम, ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन launch a landmark study report, that is State of Cable TV Distribution in India, developed in collaboration with EY, Ernst & Young, a UK-based audit and consultation firm. LCOs का इनपुट का अनुसार केबल टीवी कस्टमर का बेस में शार्प लोअर ट्रेजेक्टरी रेट दिखा गया एंड द कॉज ऑफ द रीजन, इसका कारण का हिसाब से दिखाया गया कि चैनल प्राइस का रेगुलर इंटरवल में बढ़ोतरी, एट द सेम टाइम अनरेगुलेटेड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स प्लस उसका लो प्राइस भी केबल टीवी बिजनेस लॉस एंड एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का कारण बन चुका। ड्यू टू रेगुलर चर्निंग, मतलब कस्टमर फॉल करने के लिए एमएसओ बिजनेस में भी इसका भारी असर हो रहा था। इस कारण से जीटीपीएल, केसीबीपीएल, ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार का साथ मिलकर के कोलकाता का बाईपास इलाका में विस्टा बैंक्वेट हॉल में एक एलसीओ मीट का अरेंजमेंट किया था on 3rd September 2025. Aim was how to stop churning of cable customers and retain them. मतलब सब्सक्राइबर लॉस बंद करने का कोशिश एंड एलसीओ एमएसओ ज्वाइंट मार्केटिंग करके कैसे कस्टमर को वापस लिया जाए। अक्टूबर 2025 केबीरोला कम्युनिटी सोशल प्लेटफॉर्म 2025 में दोबारा एक ट्रांसफॉर्मेशन समिट उसका आयोजन किया था। बिजनेस इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम लिनियर टीवी टू नॉन लिनियर सिस्टम। ट्रेंड ऑफ द मार्केट वही बोल रहा है। 40 साल का लिनियर टीवी बिजनेस करते करते ऑपरेटर फ्रेटर्निटी इस मुकाम में आकर के खड़ा हुआ कि ऑपरेटर को वही ट्रेंड देखते हुए आपका सोच बदलने पड़ेगा, अपना सोच में ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, क्योंकि एलसीओ का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। नेसेसरी है कि टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करे एंड उसका इंप्लीमेंट करे इन द लाइन ऑफ द बिजनेस ट्रेंड। इसी का कारण केबीरोला का ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 में, जिसमें इंडस्ट्री इनसाइडर मिस्टर भूषण गनकवारकर फ्रॉम पुणे, उन्होंने वहां पे हाजिर थे। ये सारे मुद्दे सामने रखते हुए उन्होंने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी वो सेशन किए थे। प्रेस रिलीज ऑफ ट्राई डेटेड 31 December 2025। ट्राई प्रेस रिलीज मेमो नंबर 155/2025। इसमें बोला गया है कि इंडियन इंटरनेट बेस 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ मार्क क्रॉस कर चुका है इन द मंथ ऑफ November 2025. In the last 10 years, the base in India has increased by more than 6 times. नवंबर 2015 में इंटरनेट बेस इन इंडिया में था 13.15 करोड़
वही बेस नवंबर 2025 में आकर के खड़ा हुआ है 100.37 करोड़। इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट। अब मैं प्रोग्राम का अंत में आ चुका हूँ। अब प्रोग्राम का अंत में आके मैं एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग को देने वाला हूँ। टाइम लेके थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि देखिए बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने का अगर समय नहीं है तो बिजनेस कैसे होगा। यू नो, इंफॉर्मेशन इज द की कंपोनेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टुडे। आप बिजनेस करोगे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप एजुकेशन के लिए आपको इंफॉर्मेशन लगेगा, प्रॉपर्टी डील करोगे तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए, तो डेली लाइफ में चलने के लिए उसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड इसीलिए आप न्यूज़पेपर देखते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इंफॉर्मेशन लेते हो। सो केबल एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री का अगर खबर आपको लेना है तो केबल वाला का साथ आपको जोड़ के रहने पड़ेगा। एंड नाउ दी न्यूज इज, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुराना 3 टेलीग्राफ एक्ट वो खारिज कर करके एक नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लाया हुआ है। और ये नया जो कानून लाया है वो फेज वाइज स्टेट टू स्टेट अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है। लिखा गया है कहीं भी जहां भी एडवांटेज होता है वहां कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, फिर जहां डिसएडवांटेज होता है वहां एडवांटेज भी दिखता है। तो एलसीओ को क्या करने पड़ेगा, एलसीओ को अपना एडवांटेज खोद के निकालने पड़ेगा। अब ये नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट यहाँ पे लेकिन बहुत की फीचर है। जैसा ये नया कानून का अनुसार इंडियन गवर्नमेंट अगला 2030 साल तक इस कानून के लिए कुछ टारगेट तय किया है, फिक्स। जैसा नंबर 1, देश में 4G कनेक्टिविटी 100% कंप्लीट करने पड़ेगा बाय 2030। नंबर 2, 5G कनेक्टिविटी देश में 90% चालू करना है अगला 2030 साल तक। एंड नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है एलसीओ के लिए, देयर इज ए टारगेट ऑफ 100 मिलियन, दैट इज 10 करोड़ फिक्स ब्रॉडबैंड का एक हाउस होल्ड का टारगेट दिया हुआ है अगला 2030 तक। मतलब 2030 साल तक देश में 10 करोड़ वायर ब्रॉडबैंड का बात बोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एंड नंबर 4, 1 मिलियन मतलब 10 लाख पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट ये भी बनाया जाएगा थ्रू आउट इंडिया बाय 2030। तो ये रहा नया साल में मेरा नया प्रोग्राम फॉर 2026। देखिए इसको आप देखो, आप सोचो, बिजनेस को लेके आगे जाने के लिए अपने आप को नया साल में नया करके तैयार करो। विद दिस आई विल टेक ए लीव। वंस अगेन आई विश यू एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सी यू वेरी सून। देखते रहिए, सुनते रहिए मेरा अपना, आपका, सबका कम्युनिटी यूट्यूब चैनल केबल वाला। थैंक यू, गुड बाय।